الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا برادران اسلام، شادیان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، عاشقان موڑوی، السلام علیکم۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ جب بھی تصور میں تصور میں ذکر رسول کی بات آتی ہے، جب بھی تصور میں ذکر رسول کی بات آتی ہے، گوشائے تنہائی میں اجالے کی کرن نظر آتی ہے۔ حیات بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، حیات بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہ اس خواجگان موڑا شریف جو انگلینڈ کی سرزمین اولڈم کے شہر میں انعقاد پذیر ہے، رمضان شریف بھی انشاءاللہ قریب ہے، اور آج کیونکہ اس کا دن یہ مناسب نہیں تھا، لیکن حضرت پیر جہانزیب بادشاہ صاحب سے میں نے گزارش کی کہ ہفتے کو آپ رکھ لیں، سنڈے کو شاید پھر تراویح ہوگی تو اس لیے ساتھی نہ آ سکیں گے، لیکن جتنے بھی آئے یہ سارے عاشق ہیں، یہ نسبتوں والے ہیں، اور پھر میرا ایمان ہے کہ اس ولی کامل کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں جس نے اپنی ہستی کو مٹایا ہے، اپنی سوچوں کو مٹایا ہے، اور اپنے دل میں بسایا تو محبت رسول کو بسایا۔ اس آقا مدنی تاجدار کی بارگاہ میں مجھ سے پہلے بڑے علم والے اور خوبصورت آوازوں والوں نے حضور کی بارگاہ میں اور حضور کے غلاموں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے، تو میرے دوستوں مجھ سے بعد بھی حضرت شیر اہل سنت، مجاہد اہل سنت جو ہے مفکر اسلام اور عشق رسول سے بھرپور، اور نقشبندیوں کا فیض ان کے سینے میں ہے، جب وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں گے تو یہ محفل جو ہے سراپا نور نالا نور بن جائے گی۔ اس لیے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ صدق والے ہیں، وہ عشق والے ہیں، وہ وفا والے ہیں، اور جہاں وفا والے بیٹھتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں، اور جہاں پہ فیضان ہوتے ہیں وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی غلامی شروع ہوتی ہے۔ یہ غلامی کا درد آج ہمارے سینوں میں آباد ہے، یہ محبت رسول کا فیضان آج ہمارے سینوں میں آباد ہے، ہماری زبانوں سے سرکار کی محبتوں کا فیضان جاری ہوتا ہے، تو یہ صدقہ ہے تاجدار مدینہ کے کرم کا صدقہ ہے۔ تاجدار مدینہ کا فیضان اسی کے سینے میں ہوگا جو اہل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ ویسی ہو، چاہے وہ شاذلی ہو، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، انہوں نے اپنے سینے میں اگر بسایا ہے تو حضور کی محبتوں کو بسایا ہے۔ اور سرکار کی محبتوں والوں میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، ہم وہ ہیں، ہماری وہ جماعت ہے اس جماعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ابتدا بھی میرے آقا کی محبتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ابتدا بھی میرے آقا کی محبتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس پاک محفل میں بیٹھنے والوں میں ایک ہی اپنے آقا کی اس محبتوں کا فیضان جو ہے، اس حدیث سے میں اس ریفرنس کو لیتا ہوں، حدیث کا یہ ریفرنس لینا چاہتا ہوں کہ عشق والے کس طرح بیٹھتے ہیں اور ان کا تذکرہ کیا ہوتا ہے، ان کی گفتگو کا برکت و محور کیا ہوتا ہے۔ دیکھو وہ 1400 سال پہلے کملی والا آقا، وہ نور والا آقا جو کائنات کے ہر ذرے کے لیے نور آیا ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا میرے آقا کا فیضان رحمت بھی چمکتا رہے گا۔ اور اس آقا مدنی تاجدار کی اس پاک حیت میں جو ہے مسجد نبی میں بیٹھنے والے بھی وہ اشاق و صحابی ہیں، کمپیٹیٹرز آف پراپھٹ اسلام، جن کا ایمان بھی اعلیٰ ہے، جن کا بیٹھنا بھی اعلیٰ ہے، جن کا چلنا بھی اعلیٰ ہے، جن کا بولنا بھی اعلیٰ ہے، اور ان میں بیٹھنے والا
नक्शबंदियों का सरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी होगा, उमर फारूक भी होगा, उस्मान गनी भी होगा, अली शेर खुदा भी होगा, बिलाल हबशी भी होगा, अबू जर गफारी भी होगा, और वो बैठे होंगे और क्या तज़किरा कर रहे थे? वो रब का शुक्र अदा कर रहे थे। मौला करीम हम अंधेरों में थे, हम अंधेरों में थे, वी वर इन द डार्कनेस। आज हमारे सीने उसके नूर से मुनव्वर हो रहे हैं, उस रब का भी जिक्र कर रहे हैं, और फिर साथ उस पाक हस्ती का जिक्र कर रहे हैं कि जिनकी निस्बत से आज हमारे सीने तेरे नूर से मुनव्वर हैं, वो हस्ती आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम का भी जिक्र कर रहे हैं। मस्जिद नबी में बैठकर रब का भी जिक्र होता है, रब के महबूब का भी जिक्र हो रहा है, रब के महबूब का भी तज़किरा हो रहा है। वो सब आका मदनी आते तो हुजूर पूछते हैं कि तुम क्या अमल कर रहे हो, तुम क्या बातें कर रहे हो? आका के गुलामों ने कहा या रसूलल्लाह, हम तो रब का जिक्र करते हैं, रब के महबूब का जिक्र करते हैं, आज हमें मना करते हो। वो सरकार की बारगाह में कहते हैं कि रब का जिक्र कर रहे हैं और रब के महबूब का जिक्र कर रहे हैं। तो मेरे आका ने कहा फिर कसम उठाओ, कसम उठाओ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम कसम उठाते हैं, हम इन दोनों कामों के अलावा और कुछ नहीं कर रहे, हम तो जिक्र खुदा कर रहे हैं, जिक्र मुस्तफा करीम कर रहे हैं। तो फिर मेरे आका ने कहा मैंने इसलिए कसम उठाई, मुझे मालूम है नबी तो होता ही वो है जो आगे भी देखे और पीछे, मेरा नबी तो सैयदुल मुरसलीन है, खातमुन नबिय्यीन है, द लीडर्स ऑफ प्रॉफिट्स, वो नबियों का सरदार है। और मेरे आका ने कहा मुझे मालूम है तुम यही काम कर रहे हो। जब मैं तुम्हारी तरफ आया, मुतवज्जो हुआ, तो रब ने इस अदा को पसंद कर लिया और रब ने जिब्रील को भेजा कि जाओ मेरे महबूब को ये पैगाम सुना दो, ये जो बंदे तेरे मानने वाले, तुझसे वफा करने वाले, ये रब का जिक्र कर रहे और तेरे मेरे महबूब का आपका जिक्र कर रहे हैं, रब इन पे फख्र फरमाता है और इन्हें बख्शिश अता फरमा देता है। ये कितना बड़ा इनाम मिला है। तो आज फिर ये सोचो कि ओल्डम की इस कासमिया ज़ैकिया सेंटर में बैठकर हमने ये 3-4 घंटे क्या किया है? जिक्र फदाई को किया है, जिक्र मुस्तफा करीम किया है, अपने आका का जिक्र किया है, आका के गुलामों का जिक्र किया है। उससे पहले गलबन अलामा साहब ने या मुफ्ती साहब ने ये बयान किया है, रब भी वली है, और ये इल्म वाले बैठे हैं, रब भी वली है, रसूल भी वली है और औलिया भी वली है। कितना बड़ा खूबसूरत इम्तियाज है, कितने बड़ी रैप इनका जो है रिलेशन है। तो मेरे दोस्तों, हम उन वलियों का तज़किरा करते हैं जिनका उठना बैठना चलना फिरना जो है मेरे आका की अदाओं के साथ है, मेरे आका की वफाओं के साथ है, मेरे आका की मोहब्बतों के साथ है। तो जब उनका जिक्र होता है तो मेरा ईमान है फिर उनके सदके मौला तुम वहां पे ज़रूर करम फरमा दे। और जिक्र करने वालों कि दूर दूर से कहां से आए हो, इस जिक्र की महफिल में तो आए हो ना, जिक्र करने के लिए आए। और जिक्र का फैजान यही है, ये भी एक हदीस का हवाला कि ये जिक्र करना जो है जब अल्लाह के वली की निस्बत में बैठकर, उनकी मोहब्बतों में बैठकर रब का जिक्र किया जाता है तो फिर वो कितना इनाम मिलता है, कितनी बरकत मिलती है, वो आपके मेरी सोच से भी बड़ा है। और वो हदीस पाक कि जब अहले जिक्र बैठ जाते हैं, जिक्र वाले बैठ जाते हैं, तो रब फरमाता है कि मैं उन्हें 4 इनाम अता कर देता हूँ, 4 इनामों से नवाज देता हूँ। जो अहले जिक्र में बैठ जाते हैं, उनकी मजलिसों में बैठ जाते हैं, उन्हें रब 4 इनामों से नवाजता है। एक इनाम ये है कि वो रहमत के फरिश्ते उन पे जो है अपने पर से उन्हें अपने आगोश में ले लेते हैं, परों से टांग दिए जाते हैं और फिर अल्लाह ताला की रहमत जो है उन्हें अपने आगोश में ले लेती है और सकीना उनके कलूब में उतार दिया जाता है। और फिर बड़ा इनाम सोचो कि फिर रब कहता है कि मैं अपनी नुरानी महफिलों में उनका जिक्र करता हूं जो अहले जिक्र में बैठकर मेरा। ये कितना बड़ा इनाम है। ये जिक्र के ज़मज़मे, ये जिक्र के बलबले, ये जिक्र की मोहब्बतें उन्हीं को हासिल होती हैं जिनके सीने मोहब्बत रसूल से आबाद होती है। और मेरा रसूल वो है जो कायनात के हर जर्रे के लिए रहमत बनकर आया है। मैं तो इस तरह कहता हूँ, आका की अदाओं को हम कुर्बान होते हैं। वो नामे मोहम्मद ऐसा पाक नाम है, नामे मुस्तफा ऐसी अज़मतों वाला नाम है। ये काबा की हुर्मत में भी मुस्तफा का नाम है, काबा की हुर्मत में भी मुस्तफा का नाम है, अर्श के पाँव में भी मुस्तफा का नाम है, जन्नत के पत्तों में भी मुस्तफा का नाम है, अंबिया के सहीफों में भी मुस्तफा का नाम है, इब्राहिम की दवाओं में भी मुस्तफा का नाम है, मूसा की बशारत में भी मुस्तफा का नाम है, ईसा की बशारत में भी मुस्तफा का नाम है, मूसा की वफा में भी मुस्तफा का नाम है, और मेरे आका के गुलाम सद्दीक़ अकबर की वफा में भी मुस्तफा का नाम है, उमर फारूक की अदा में भी मुस्तफा
मुस्तफा का नाम है, उस्मान गनी की हया में भी मुस्तफा का नाम है, एली शेर खुदा की हैरत है, एली शेर खुदा की उस अदा में, उस जफा में, उस मोहब्बत में भी मेरे मुस्तफा का नाम है। उसमें सही जो है हदीस के रावियों में भी मेरे मुस्तफा का नाम है, शरीयत के और औलिया की इन मजलिसों में बैठते हैं उनमें भी मुस्तफा का नाम ये तो है। और ये वो पाक नाम है, ये अजमतों वाला नाम है। अगर इसकी मैं गर्दान करूं तो वक्त कम है, ये आगे चला जाएगा, लेकिन इतना कहता हूं कुल सलात की हैबतों में भी मेरे मुस्तफा का नाम है, असल की मुलाकातों में भी मेरे मुस्तफा का नाम है, रब के कुर्ब के जलवों में, काबा हुसैन की कुर्बतों में भी मेरे मुस्तफा का नाम है। हम उस आका मदनी ताजदार से वफा करने वाले, उनसे उनकी अदाओं पे कुर्बान होने वाले हैं। आज हमारे सीने भी सरकार की मोहब्बतों से आबाद है, तो ये सच्चा है। तो गौसे ज़मा ख्वाजा कासिम मोड़ी जवानी उस ख्वाजा कासिम ने अपनी हस्ती को बढ़ाकर आने वाले को ये नहीं कहा कि मेरे नारे लगाओ, बल्कि उनके सीने में मोहब्बत रसूल को आबाद। यही तो काम है सूफिया का, अहलुल्लाह का काम ही यही होता है। अंग्रेज ने क्या खूबसूरत कहा कि ये सूफिया लोग जो है, हम जो है वो जो है उनके फॉलोअर्स हैं। और वो कहता है the work of the Sufis is purify the hearts and the thoughts of people to get around them। कि वो सूफिया का कमाल ही होता है कि जो उनकी इरादत में बैठ जाते हैं, they will change their internal world, अंदर की दुनिया को आबाद कर देते हैं। How to change your internal world? By the recitation of zikr, अल्लाह के जिक्र के साथ, और जो मोहब्बत रसूल के साथ जब दबों को ला इलाह की ज़रबात से लगाता है तो उसका चेहरा भी चमकता है और उसका सीना। सुभान अल्लाह। दुआ करो कि हमें इन वफा वालों के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। और देखें, ये सिर्फ मेरा एक मामूली सा एक हाजिरी है थोड़ी सी, क्योंकि किबला शाह साहब ने बयान फरमाना है। मैं बहुत मशहूर हूँ, मेरे हमारे बड़े भाई साहब हजरत पीर जहांगीर बादशाह साहब कासमी वलियात दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, ये उनकी रूहानी तसर्रुफात और मेहनतों का सिला है कि आज हम पूरी दुनिया में ये फैजान कासिम को लेकर, और इस दफा मुझे ये सादत हासिल हुई ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर, सिडनी में बहुत बड़ा शब बारात का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था। वहाँ पे फ्यूजन मुस्लिम जो है वो सिलसिले में दाखिल हुए, फिर न्यूजीलैंड में भी ये सिलसिले हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे आशिक होते हैं, या दूसरी साथी का जिक्र नहीं करना चाहता, वो भी पहुंचे हुए थे। लेकिन यहाँ आशिकों की महफिल थी, किबला शाह साहब वहाँ पे 200 थे, इधर हजारों की तादाद। ये कमाल है ना, ये ख्वाजा कासिम का, इसलिए कि हम उनके फैजान को लेके चले हैं। और आज बरतानिया क्या पूरी दुनिया में, अभी मैं पोलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर हॉलैंड, फिर यहाँ पे आया, और साहब का हुक्म था कि उससे पहले पहुंचना है, तो कल रात को मैं यहाँ पे पहुंचा। तो अल्लाह ताला हमें हजूर के इस फैज को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी बरकत से मुस्तफीद फरमाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम की हाजिरियां कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।